Hello investors, welcome back to the new video. Today we are going to discuss about the current state of the markets. As you can see here, Nifty 50 has corrected significantly from its top. So here what we see is that there was a top which was made at 26,261 और 265 on 27th of September और 27 September के बाद Nifty has straight away given a corrective move and currently now it is at 25,374. This is live market. So today also Nifty 50 has is down. Okay. So what is the reason why Nifty is today it is 423 points down. So what is the reason why Nifty is falling down? So let us look at the reasons why Nifty is if you see 1 year chart of Nifty, it has given a good return, around 30% returns which Nifty has given. Okay, so let us compare this Nifty with other international markets. How Nifty has fared with compared to Dow, Nasdaq, how it has fared with Hang Seng Index or Chinese Index. So let us look at some perspectives because आपको देखना है कि FIIs कैसे सोचते हैं, हाउ द FIIs थिंक व्हेन दे आर अलोकेटिंग मनी अक्रॉस मार्केट्स. कौन से कंट्री को ज़्यादा वेटेज देना है, विच स्टॉक मार्केट इज एक्सपेंसिव, विच स्टॉक मार्केट इज लुकिंग गुड बिकॉज दे हैव करेक्टेड अ लॉट, कहाँ पे कुछ स्टिमुलस आ रहा है. तो लेट अस सी कंपेयर निफ्टी विथ अदर इंडाइसेस and let us see where we stand now. So here if you see that we are comparing Nifty 50 with Dow Jones Industrial Average. So Nifty has given in a 1 year, Nifty has given return of 30%, 30.5%, whereas Dow Jones has given a return of around 27% over a 1 year period. But over a 6 months period, 6 months में Nifty is up 12.68%, but Dow is up 9.33%. क्लियरली आप देख सकते हो कि निफ्टी का ये जो आउट परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू डाउ, वो आप देख सकते हो 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत इट हैज अंडर परफॉर्म डाउ बिकॉज इट हैज करेक्टेड नाउ. But over a 1 year time frame, 3% Nifty's outperformance. Over a 6 months, Nifty's outperformance is 12.66 as against 9.33% Dow Jones Industrial Average. So let us look at other country indices. Here you are comparing Nifty with Hang Seng Index. How the Nifty is compared with Hang Seng Index. So you can see the huge outperformance for the last 3 months. Nifty is up only 4%, whereas Hang Seng is up 22%. Over 6 month period, Nifty is up 12.66%, whereas Hang Seng is up 32%. And over a 1 year period, Nifty is up 30% and Hang Seng is also up around 28%. तो अभी एक साल का आप देखोगे तो ये Nifty had outperformed Hang Seng Index for quite some time. From this period to this period again it has outperformed here. So Nifty is continuously going up. आप देख सकते हो कि जहाँ पे बाजार कंटिन्यूसली जा रहा है तो FIs अगर देखेंगे अभी तो ये बाजार में अगर हैंग सेंग इंडेक्स देखोगे तो इट वाज एट दिस लेवल अराउंड 11 सितंबर को हैंग सेंग इंडेक्स वाज एट 17,108. नाउ एफआईएस क्या सोचेंगे, एफआईएस बोलेंगे कि निफ्टी हैज मतलब काफी इट इज रिचली वैल्यूड, रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल, वेयर एज हैंग सेंग इंडेक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाज क्वाइट फेवरेबल बिकॉज इफ यू कंसिडर दिस पॉइंट, Hang Seng has not given any returns, point minus 0.51. तो एक साल में Hang Seng ने कुछ भी नहीं किया. बट ये सडन जो इंक्रीज आया Hang Seng में बाई विच फ्रॉम 12th ऑफ सितंबर, मतलब मतलब 15-20 दिन में Hang Seng ने पूरा अंडर परफॉर्मेंस जो है निफ्टी के साथ वो पूरा कवर किया. तो ये ह्यूज जंप जो हुआ है यहाँ पे काफी सारा इंडेक्स इंक्रीज हुआ है. चाइनीज इंडेक्स ये चाइना स्टिमुलस की वजह से ये हुआ है. तो एफआईएस क्या करते हैं, एफआईएस देखते हैं कि विच मार्केट इज चीपर. अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 10 सितंबर को निफ्टी इज अप 28% और बट हैंग सेंग इज अप ओनली 0.22%. तो अभी एफआईएस क्या बोलेंगे कि निफ्टी में हमने काफी सारा प्रॉफिट बनाया है तो निफ्टी को बेचते थे एंड आई विल बाय हैंग सेंग इंडेक्स बिकॉज इट इज लुकिंग डर्ट चिप. उसके ऊपर से चाइना ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया तो ये ये सोने पे सुहागा था. तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये हैंग सेंग इंडेक्स मतलब एफआईएस की थिंकिंग से आप देखोगे तो हाउ दे थिंक दे विल लुक एट हैंग सेंग इंडेक्स बिकॉज इट इज इट इज लुकिंग क्वाइट चीप. और यहाँ पे 5 साल का आप देखोगे तो निफ्टी में 124% का रिटर्न दिया है, मतलब मोर देन डबल. द एफआईएस आर मोर देन डबल देयर मनी इन इंडिया, वेयर एज हैंग सेंग में स्टिल 15% माइनस में है अभी. तो हैंग सेंग इंडेक्स इज ओवर हियर वेयर एज निफ्टी इज ओवर हियर. सो 124% का निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, वेयर एज हैंग सेंग ने खाली -30% का अंडर परफॉर्मेंस किया है कंपेयर टू निफ्टी. अभी कोई भी आदमी, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि अगर मैं
दो मार्केट में से कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा चलो निफ्टी में मेरे को 124% निफ्टी में मिल रहा है, लेकिन हैंगसेंग में मुझे -15% हो गया है। तो हैंगसेंग में अगर हैंगसेंग इंडेक्स में जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं, वो अगर इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, अगर गवर्नमेंट स्टेप लेती है, तो आई विल मूव माई मनी टू हांगकॉन्ग मार्केट और चाइना मार्केट। तो यहाँ पे यही हो रहा है। अगर निफ्टी अब देखोगे तो निफ्टी जो करेक्शन अभी चल रहा है, निफ्टी का करेक्शन ये बहुत चलने वाला है, बिकॉज ये एफ आई यहाँ पे बेच रहे हैं इंडिया में, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन चाइना, इन हांगकॉन्ग मार्केट्स। तो दिस इज द ट्रेंड विच इज सीन, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। यहाँ पे कैसे हो रहा है कि आपको एक कंट्री में प्रॉफिट मिल रही है, यू आर टेकिंग द प्रॉफिट्स एंड पुटिंग दैट प्रॉफिट्स इन अनदर कंट्री, एंड देयर यू आर सीइंग दैट इट इज डर्ट चीप वैल्यूएशंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी को सब बेच के चले जा रहे हैं। what they are doing is they are selling nifty stocks, they are taking the money and they are trying to invest in China markets, and that is the reason why Hong Kong markets index is up. China index is also, but China is on currently having a 1 week holiday. तो चाइना में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफआईएस आर मूविंग मनी फ्रॉम इंडिया टू चाइना, दिस इज अ बिगेस्ट ट्रेंड विच इज करंटली सीन, एंड दैट इज द रीजन निफ्टी इज करेक्टिंग, निफ्टी नीचे आ रहा है। देर इज नो अदर रीजन वाई निफ्टी इज कमिंग डाउन। अगर आप देखोगे तो जियो पॉलिटिकल इशूज है, वो तो कब से चल रहे थे, अचानक से निफ्टी में क्या हो गया, निफ्टी में सडनली वाई दिस प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग इज हैपनिंग, बिकॉज निफ्टी में आप देखोगे तो इट इज नाउ एट टॉपिंग आउट। अगर ये बहुत बढ़िया है, अराउंड एक साल में 30% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ से आके निफ्टी को करेक्ट होना ही है, और भी करेक्ट हो सकता है। ओके, सो दिस इज नॉट नॉट ट्राइंग टू स्केयर इन्वेस्टर्स, लेकिन ये आपको देखना है कि हम कहाँ पे कम्पीट करें, हम चाइना के साथ कम्पीट करें, हम अदर कंट्रीज के साथ कम्पीट करें, ताइवान के साथ कम्पीट करें। और जो एफ आई जो है उनको देखना है कि कंट्री में कौन सी कंट्री में ज़्यादा चीप स्टॉक मिल रहे हैं, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे। जहाँ पे उनको प्रॉफिट आ रहा है तो वो तो प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे ही निकलेंगे। सो दैट इज द करेंटली द ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन, विच विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। Let us look at Nifty Mid Cap 100 Index. In a 1 month time period, see it has come down from around, it was touched a high of 60,860 और अभी 59,438 में है। तो ये लास्ट 1 वीक में ये क्रैश जो हुआ है, ये आप देख सकते हो, इट हैज फॉलन इन द लास्ट 1 मंथ। और ओवर ईयर देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ज़्यादा कुछ क्रैश हुआ है। मतलब इसमें कैसा है कि देर इज 46%, एक साल में 46% रिटर्न दिया है निफ्टी मिड कैप 100 ने। और अगर देखो ऐसा है कि ये मार्केट अगर सस्टेन करना चाहिए, अगर ये मार्केट अगर ऊपर जाना है समझो, तो इसमें क्या व्हाट आर द पॉजिटिव्स। एक तो पॉजिटिव है कि अर्निंग्स आपके बहुत तोड़फोड़ आने चाहिए। अगर अर्निंग आपके अगर सरप्राइजिंग आते हैं, जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे भी ज़्यादा आएंगे, सरप्राइज करेगा मार्केट को, तो अगर बीट करेगा एनालिस्ट एस्टिमेट को, तो ये मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज अबाउट मॉनसून तो अच्छा था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड थिंग इज अबाउट स्टेट इलेक्शन विच आर ड्यू नाउ। तो स्टेट इलेक्शन में अगर रूलिंग पार्टी को अगर बहुत बड़ा झटका मिलता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो दैट इज गोइंग टू बी द की रीजन। अर्निंग्स अगर शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन है तो मार्केट नीचे आएगा। ओके, फॉर मार्केट टू गो डाउन क्या क्या पॉइंट्स है, बहुत ऊपर है, देर आर लॉट ऑफ पीपल वो आर सिटिंग ऑन ह्यूज प्रॉफिट्स। मिड कैप आप 100 देखोगे तो निफ्टी 50 देखोगे तो पीपल आर सिटिंग ऑन ह्यूज प्रॉफिट, लेकिन किसी को प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आई विल होल्ड ऑन टू द स्टॉक। एसआईपी भी बुक भी बहुत बढ़िया आ रहा है। अभी ये सितंबर एंड हो गया तो एसआईपी का पैसा भी म्यूचुअल फंड के पास आ रहा है। तो एक पॉजिटिव फैक्टर ये है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, वो डोमेस्टिक लिक्विडिटी। दैट इज द ओनली थिंग विच इज ड्राइविंग द मार्केट सब। लेकिन एफआईएस देखोगे तो एफआईएस आर कंटिन्यूअसली सेलिंग, बिकॉज एफआईएस को लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत कम है। मतलब आपको यहाँ देखना चाहिए आपका रिस्क कितनी है। तो ये देखोगे तो आपको ये इतनी बड़ी रिस्क है आपकी, कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेवल, ये जो नीचे का लेवल है ना, इतनी बड़ी रिस्क दिखा रही है। और रिवॉर्ड में क्या है कि अगर मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, सी एक ही पॉइंट है, अगर अर्निंग्स में बहुत तोड़फोड़ आए तो ही जाएगा। डोमेस्टिक लिक्विडिटी अभी मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। ओके, तो एसआईपी का पैसे आ रहे हैं, वो डोमेस्टिक इक्विडिटी के कारण ही मार्केट ऊपर जा रहा है। देयर इज नो अदर रीजन फॉर मार्केट टू गो अप। अर्निंग्स का जो अभी रिजल्ट सीजन अभी चालू होगा, उसमें अर्निंग्स कैसे आएंगे उसके ऊपर पूरा मार्केट का ट्रेजेक्टरी या मार्केट का मूव विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट अर्निंग्स। लेकिन मेरे हिसाब से अर्निंग्स में आपको इसमें काफ़ी सारा डिस्काउंट हो चुका है, काफ़ी सारा अर्निंग्स जो है
अर्निंग ग्रोथ जो बोलते हैं, अभी ऑफकोर्स अभी देखो कंपनीज का अर्निंग्स को तो आने वाला है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, आपके बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, तो कंटिन्यूअसली वो लोन दे रहे हैं, जिसका डिसबर्समेंट हो रहा है, कासा आ रहा है, बिजनेस तो बंद नहीं हुआ है, सब बैंक्स आर ऑपरेटिंग डेली बेसिस पे, इतने सारे लोग आ रहे हैं आपके स्टोर्स में, लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, डीमार्ट में आप देखोगे तो ह्यूज बहुत भीड़ है, ट्रेंड में ह्यूज भीड़ है, हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई कुछ रुका नहीं है। आप अगर आप देखोगे तो ग्राउंड लेवल पे कुछ भी रुका नहीं, इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है। ओके, टू दैट एक्सटेंट कार्स ले रहे हैं लोग, टू व्हीलर्स ले रहे हैं, वो सब कार्स में टू व्हीलर्स में ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो देर इज नो ऑन द ग्राउंड लेवल कुछ नहीं इशू, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का इशू है। स्टॉक मार्केट में कैसे है कि कंपनीज के जो वैल्यूएशन है विच आर गॉन बियॉन्ड, मतलब आगे आगे की डिस्काउंटिंग अभी कर दिया है, मतलब एक साल के बाद जो भी प्रॉफिट आने वाला है उसका पहले से ही प्राइस दाम बढ़ा दिया है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। अगर वैसे देखा जाएगा तो ग्राउंड लेवल पे कंपनीज आर डूइंग प्रीटी वेल, दे आर ग्रोइंग, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन मार्केट्स ने क्या किया है कि इतना सारा लिक्विडिटी जो मार्केट्स में आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच वो चेस कर रहे हैं कंपनीज को, और वो कंपनीज का उन्होंने वैल्यूएशन इतना हाई करके रखा है कि कोई अभी प्रॉफिट के लिए कोई टेबल पे रखा ही नहीं किसी के लिए। तो ये जो मार्केट में अगर इनकेस अगर आपको रिटर्न्स देखने हैं तो आपको करेक्शन में ही इम्पोर्ट लेना पड़ेगा। अभी there will be a time when FIIs are continuously selling in Indian market, SIP बुक जितना सारा आएगा वो मार्केट में आते ही रहेगा, लिक्विडिटी जब तक आएगी तब तक ये मार्केट नीचे करेक्ट नहीं होगा। लेकिन पॉइंट विच आई एम ड्राइविंग टू इज दैट द वैल्यूएशंस आर लुकिंग प्रीटी स्ट्रेच्ड नाउ, मतलब स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपको रिस्क ज्यादा दिख रहे हैं, रिवॉर्ड कम दिख रहा है। अगर आपके, लेकिन देखो एक चीज है, अगर अर्निंग्स तोड़फोड़ आए, अगर अर्निंग बहुत ही खतरनाक अर्निंग आए अब वो एक्सपेक्टेशन, देन देर इज नो लुकिंग बैक, तो मार्केट विल गो अप। तो लेकिन कितनी प्रोबेबिलिटी क्या है अर्निंग्स टोटली बीट करने की, वो भी देखना है। एसआईपी में पैसा आ रहा है, कब तक पैसा आते रहेगा, डोमेस्टिक फंड्स के पास लिक्विडिटी, काफी लिक्विडिटी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के पास कैश रखा है, पीपीएफएस, पराग परीख ने बोला है कुछ 20-25% का कैश पे बैठे अभी, वो सब पैसा करेक्शन पे आ सकता है। लेकिन मार्केट जो अभी रिसेंटली जो क्रैश हुआ है मार्केट में, some extent it is connected with the SEBI's move on F&O. That is one aspect, but major aspect is profit booking by FIS and FIS moving from India to China. So that is a big trade which is happening now. Or FIs are continuously going to sell India market. They are going to book profits in India because they are looking that they are finding India extremely expensive at these levels. They will come back to India अगर वो मार्केट करेक्ट होता है, अगर अर्निंग्स क्वार्टरली अर्निंग्स अगर अच्छी आई, एंड इफ दे सी दैट इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छी आ रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, आपका पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये सब चीज वो मैक्रो लेवल पे देखेंगे। अगर वो सब पॉजिटिव है तो वापस एफआई इंडिया में आएंगे। लेकिन स्टेट इलेक्शन में दे आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर मार्केट विल गिव, एक झटका तो आने वाला है मार्केट में जब स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, तो ये सब चीज को देखना है। इजराइल का और ईरान का जो भी टसल चल रहा है वो तो है ही, बट दैट इज नॉट द रीजन फॉर मार्केट्स टू करेक्ट। जो निफ्टी ने ऐसा करेक्शन जो दिया है लास्ट पांच दिन में, that is all because of FI selling. FIs are moving money from India to China. That is the only sole reason for the markets to go down. So let us look at how this will perform in the next few days, because the earning season is coming. Earnings में जैसे जैसे कंपनी के earnings announce होंगे वैसे वैसे we will see how the market moves, but currently the market looks pretty overstretched at the moment. I hope you like this video. In case you like the video, kindly click on the like button. Thank you.